اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ صہیونی فورسز کے غزہ میں 30 سے زائد مقامات پر حملے، 24 گھنٹے میں 200 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ شہداء کی تعداد 22,815 ہو گئی ہے، جبکہ 57,000 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیلی وزراء کی جانب سے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور رہے گی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ڈرون حملے میں ساتھیوں سمیت حماس کے نائب سربراہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کہا اسرائیل کو صالح العروری کی شہادت کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ حماس کے سینئر رہنما صالح العروری کی شہادت سے اب لبنان، یمن، شام اور عراق میں مغرب کے خلاف ہماری مزاحمت تیز ہوگی۔ بیروت میں حملہ لبنان کے دل پر حملہ ہے۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کا آج آخری روز۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز پر مشتمل اپیلیٹ ٹریبیونل ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کر کے 10 جنوری تک فیصلے کریں گے۔ اب تک 100 سے زائد اپیلیٹ ٹریبیونل میں دائر ہو چکی ہیں۔ 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس جواد حسن نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر پشاور کے لیے بلے کا نشان دیا گیا۔ پنجاب کے لیے لاہور ہائی کورٹ حکم جاری کر سکتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان کی عدالتی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز خان نے کہا کہ عدالت سے باہر کیا ہوتا ہے اس کا سماعت کے ساتھ کچھ کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ ڈالنے سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے۔ ایف بی آئی نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ انتخابات کے لیے ہر 3 امیدواروں میں سے ایک ٹیکس قوانین کی پامالی میں ملوث ہے۔ الیکشن کمیشن نے تقریباً 28,000 امیدواروں کے اعداد و شمار شیئر کیے۔ ان میں سے 9,200 ایف بی آئی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں۔ 4200 سے زائد امیدوار 3 سال سے نان فائلرز تھے۔ ایف بی آئی نے اسکروٹنی کے دوران 1100 سے زائد امیدواروں کے نادہندہ ہونے کی نشاندہی کی۔ امیدواروں سے 6 ارب روپے کے لگ بھگ وصولیاں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ٹیکس فراڈ میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ وائٹ کالر کرائم کوئی عام جرم نہیں ہے۔ وائٹ کالر کرائم سے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ جعلی انوائسز پر اتنا بڑا کلیم کیا گیا، کوئی زبردستی کسی کے اکاؤنٹ میں کیسے پیسے گھسا سکتا ہے؟ یہ عام جرم نہیں ہے۔ ملزم کو ضمانت کس بنیاد پر دیں؟ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کر دیا گیا۔ پرویز الہی کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی، جس پر جیل کے ہسپتال میں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ آزمائے جانے والے حکمران پھر چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو انہیں ووٹ دیا جائے۔ ملک کی تباہی کی ذمہ دار وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے بار بار حکومت کی ہے۔ حکمران طبقات نے اپنے رشتہ داروں میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو اپنی تقدیر بدلنے کا موقع دیا ہے۔ سانپوں کو مزید دودھ پلایا گیا تو یہ اژدہا بن جائیں گے۔
पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध आज भी बरकरार। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत हाल बेहतर होने पर परवाजों का शेड्यूल बहाल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। कौमी टीम ने 9 विकेटों के नुकसान पर 285 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो अच्छा साबित न हुआ। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और डेब्यू करने वाले यंग क्रिकेटर साइम अयूब ने बैटिंग का इंतहाई मायूस कुन आगाज किया और बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया। इमाद शकील भट्ट कौमी हॉकी स्क्वाड की क़यादत करेंगे, जबकि अबू बकर महमूद को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया। ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट 15 ता 21 जनवरी अमान के शहर मस्कत में खेला जाएगा। खिलाड़ियों में गोल कैप्स अब्दुल्ला इश्तियाक, वकार, अरबाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, सुफियान खान, मुर्तजा याकूब, अब्दुल मनान, अकील अहमद, मोइन शकील शामिल होंगे। और पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा फरियाल महमूद कहती हैं कि जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण की तरह दिखाई देती हूं, तो यह सुनकर अच्छा लगता है। प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी मदाह हूं और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी हम शक्ल लगती हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि मैं दीपिका पादुकोण की तरह नजर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जानने बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। सियोनी फोर्सेस की गजा में 30 से ज़ायद मकामात पर हमले जारी हैं। 24 घंटे में 200 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा में शहदा की तादाद इस वक्त 22,815 हो चुकी, जबकि 57,000 के करीब अफराद जख्मी होने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। देर अल बलाह में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइली वुज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मजम्मत करते हुए ये कह दिया कि गजा फ़लस्तीनियों की सरजमीन है और रहेगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन के खिलाफ इसराइली वुज़रा का बयान इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई दहशत गर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं है। मैथ्यू मिलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में लिखा कि अमेरिका ने इसराइली वुज़रा स्मोट्रिच और बैन गुएर के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया है। गजा से बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों की नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने इस्राएली ड्रोन हमले में साथियों समेत हमास के नायब सरबरा की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल को सालिह अल अरोरी की शहादत की भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि हमास के सीनियर रहनुमा सालिह अल अरोरी की शहादत अब लुबनान, यमन, शाम और इराक में मगरिब के खिलाफ हमारी मुजाहमत है। बेरूत में हमला लुबनान के दिल पर हमला है। बेरूत के मरकज में हमास रहनुमा पर हमले को लुबनान के अवाम, सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए हिजबुल्लाह का कहना था कि इस हमले का इसराइल को भरपूर जवाब देना चाहिए। सालिह अल अरोरी और साथियों का लुबनान में कत्ल होना इसराइल की खतरनाक जारियत है। इसराइल के इस जुर्म को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका भरपूर बदला लिया जाएगा। लुबनान के वजीर आजम नजीब मियाकाकी का कहना था कि इसराइल गजा में नाकामी के बाद लुबनान को मुहाज अराई के लिए नए मराहिल में ले जाना चाहता है। लुबनान इसराइली हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शिकायत करेगा। ईरान ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया कि हमास रहनुमा का कत्ल इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत मजीद बढ़ाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि हमास रहनुमा की हलाकत के बाद सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई है। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज ने लुबनान के दारुल हुकूमत बेरूत के जुनूबी इलाके दानिया में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के दफ्तर पर ड्रोन हमला किया,
जिसमें हमास के सीनियर रहनुमा शहीद हो गए थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल एपल ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करके 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। अब तक 100 से ज्यादा अपीलें ट्रिब्यूनल में दायर हो चुकी हैं, जिन पर समाअत का सिलसिला भी जारी है। कानून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कागजाती नामजदगी मंजूर करने के फैसले के खिलाफ भी अपीलें दायर हो चुकी। नवाज शरीफ के एन 130 से कागजात मंजूर के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। एपल ट्रिब्यूनल के जज रसाल हसन सईद बतौर एतराजी अपील पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई ने एन 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग अफसर के हकाइक के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करें, जबकि 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला भी जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बानी पीटीआई के तर्जुमान बैरिस्टर उमैर न्यासी के मियावाली के हलके एनए 189 और 90 से कागजात नामजदगी मंजूर करके उनका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुना दिया और रिटर्निंग अफसर मियां वाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि समझ नहीं आता रिटर्निंग अफसरान ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल ने आरओ को हुक्म दिया कि उमैर न्यासी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल और इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट से खबर आपको देंगे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पेशावर के लिए बल्ले का निशान दिया गया है, पंजाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट हुक्म जारी कर सकती है। मसला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्ले का निशान होगा और पंजाब में ये निशान नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को एक रिसर्च विंग बनाना चाहिए जो रिसर्च करके केस फाइनल करे। अदालत आलिया ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया है कि क्या हाई कोर्ट इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हों। क्या जो रिलीफ किसी और को अदालत से मिला है यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट भी दे सकती है। क्या सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है। अदालत ने दरखास्त गुजार को इन सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसला आज ही सुनाऊंगा, मेरा फैसला अदालती नजीर के तौर पर देखा जाएगा, इंतजार करें। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील पर समाअत कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो पीटीआई के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि काजी अनवर एडवोकेट मेरे उस्ताद हैं, मैंने वकालत की प्रैक्टिस उनके साथ शुरू की थी। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मैं और बैरिस्टर गोहर इस केस में वकील हैं। सियासी जमातों ने अदालत में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। जस्टिस एजाज खान ने कहा कि हमने आपसे सीखा है कि कानून के लिए ये बातें बेमानी हैं। अदालत से बाहर क्या होता है उसका समाअत के साथ कुछ काम नहीं। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, इधर आते हुए मुझे रोका गया, मेरी तलाशी ली गई। क्या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? उनके रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस आया है। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि हमारी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इस पर जस्टिस एजाज खान ने कहा कि ये अब उनसे हम पूछेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है। एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं।
इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। FBI ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इंतखाबात के लिए हर 3 उम्मीदवारों में से एक टैक्स कानून की पामाली में मुलविस या रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदा नहीं है। उम्मीदवार 3 सालों में 1 साल के दौरान इनकम टैक्स के नॉन फाइलर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉन फाइलर्स और गैर रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की कौमी नुमाइंदे बनने की ख्वाहिश मुल्क के नॉन टैक्स कल्चर की अक्कासी करती है। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 28,000 उम्मीदवारों के अदाद शुमार शेयर किए। इनमें से 9,200 FBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं पाए गए। 9,200 से ज्यादा उम्मीदवारों का टिकट कवानीन की पाबंदी न करने का मतलब पार्लियामेंट के कानून की पामाली के बावजूद आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है। जराये के मुताबिक 4200 से ज्यादा उम्मीदवार गुज़िश्ता 3 साल से नॉन फाइलर्स थे। 5,000 से ज्यादा इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर नहीं। FBI ने स्क्रूटनी के दौरान ही 1100 से ज्यादा उम्मीदवारों के न दहिंदा होने की निशानदेही कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्स्ट फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुलजिम अमार रफीक की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि व्हाइट कॉलर क्राइम कोई आम जुर्म नहीं। व्हाइट कॉलर क्राइम से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है। जाली इनवॉइसेस पर इतना बड़ा क्लेम किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तेफसार किया कि कोई जबरदस्ती किसी के अकाउंट में कैसे पैसे घुसा सकता है, ये आम जुर्म नहीं। मुलजिम को जमानत किस बुनियाद पर दी? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि ये अरबों का फ्रॉड है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि मुलजिम ने कुछ नहीं किया, सब टेक्स्ट कंसल्टेंट का काम है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि कंसल्टेंट ने भी हेर फेर करके फायदा मुलजिम को ही पहुंचाया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुलजिम अमार रफीक ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू किया था, जो अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा दूसरे शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि खुली अदालत में आनी दरखास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रावलपिंडी की अडयाला जेल में तबीयत खराब। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को तबीयत खराब होने पर अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत थी, जिस पर जेल के अस्पताल में उनका तिब्बी मुआयना किया गया। जेल जराये का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही का RIC में तिब्बी मुआयना किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब के कुछ जरूरी टेस्ट भी करवाए जाएंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि आजमाए जाने वाले हुक्मरान फिर चाहते हैं कि 8 फरवरी को उन्हें ही वोट दिया जाए। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार वही पार्टियां हैं जिन्होंने बार बार हुकूमत की है। हुक्मरान तबकात ने अपने रिश्तेदारों में पार्टी टिकट तकसीम किए। उनकी पार्टियां खानदानी प्रॉपर्टी और ये कारकुनों को जाती गुलाम समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला ने कौम को अपनी तकदीर बदलने का मौका दिया है। सांपों को मजीद दूध पिलाया जाए तो ये अजदहा बन जाएंगे। पाकिस्तानी रोशन मुस्तकबिल, अमन, तरक्की, मजबूत मईशत के लिए इंतखाबी निशान तराजू पर ही मोहर लगाए। साइलिन की सहूलत के लिए पंजाब के मुतादिद इजलाह को लाहौर हाईकोर्ट के करीबी बेंचों से मुंसलिक कर दिया गया। अवामी सहूलत और साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के विजन के तहत चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मुतासिद इजलाह को करीबी बेंचों के साथ मुंसलिक करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला भक्खड़ को लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया। जिला मियांवाली को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के साथ मुंसलिक किया गया, जबकि जिला लोधरा को लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के साथ मुंसलिक कर दिया गया। इसी तरह जिला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के साथ मुंसलिक किया गया। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि 9 जनवरी से भक्खड़, मियांवाली, जिला लोधरा और तहसील सराय आलमगीर के मकामात मुतलिका बेंचों पर सुने जाएंगे। तीनों असला और तहसील सराय आलमगीर के लाहौर हाईकोर्ट लाहौर प्रिंसिपल सेट पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुतलिका बेंचेस पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और खबर गम है कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। सरताज अजीज़ काफ़ी अरसा से शदीद इल्ल थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर सरताज अजीज़ के इंतकाल का पैगाम जारी किया। मरहूम की उम्र 95 बरस थी। सरताज अजीज़ 7 फरवरी 1929 को नौशहरा में पैदा हुए थे। सरताज अजीज़ मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी भी थे। सरताज अजीज़ ने लाहौर के इस्लामिया कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 1952 से 1971 तक सिविल ब्यूरोक्रेसी में खिदमत सर अंजाम दी। सरताज अजीज 1988 से 1994 तक सेनेटर भी रहे। 2013 से 2017 तक नून लीग की हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे। सरताज अजीज मुतादिद किताबों के मुसन्निफ भी थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम, सियासी रहनुमाओं ने सरताज अजीज के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर खजाना सरताज अजीज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सरताज अजीज अपनी जात में एक इरादा थे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने एक पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरताज अजीज की वफात पर दिली दुख हुआ है। वो नवाज शरीफ के करीबी और बाएतमाद साथी थे। सरताज अजीज ने तमाम उम्र क़यादत, जमात और नजरी के साथ अटूट वाबस्तगी निभाई। उनका कहना था कि सरताज अजीज एक मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी और निहायत शरीफ इंसान थे। वो अपनी जात में एक इरादा थे। उन्होंने हजाना और मुआशी महाजों पर निहायत काबिल फख्र खिदमत सर अंजाम दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि फाटा इस्लाहात, मुआशी, ज़रई और आबी पॉलिसियों समेत गवर्नेंस के मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने खुलूस और दयानत से मुल्क कौम की खिदमत की है। और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी आज लाहौर आमद मतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 127 के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। इसके अलावा दोनों रहनुमा पंजाब में इंतखाबात के हवाले से भी गौर फिक्र करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी डपला ट्राइवेंट रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 90% उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। एन 127 में सूबाई नशिस्तों पर कौन उम्मीदवार होगा, ये फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। और अब कुछ बात करते हैं मौसम से मुतालिक। तो आपको बताएं कि पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध आज भी बरकरार है। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर होगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रिश्कई और बुरहान से इस्लामाबाद सवात एक्सप्रेस वे, कर्नल शेर खान से इस्मालिया, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर हसारा एक्सप्रेस 1 बुरहान से जारिकस M14 को हल्का से दाऊद खेल इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब धुंध की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रवानगी और आमद वाली ज्यादातर परवाजें भी ताखीर का शिकार हुई हैं। रात से अब तक तकरीबन तमाम परवाजों को ताखीर का सामना रहा। PIA के मुताबिक 182 शारजा से इस्लामाबाद की परवाज पेशावर की तरफ मोड़ दी गई। PK 134 दुबई से इस्लामाबाद की परवाज लाहौर उतार ली गई, जबकि परवाज PK 179 दुबई रवाना न हो सकी। PK 181 की इस्लामाबाद से शारजा रवानगी में ताखीर हुई है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद से कोयटा रवानगी की परवाज PK 325 भी ताखीर का शिकार रही। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद और कराची से इस्लामाबाद से कराची की परवाजें भी ताखीर का
शिकार हुई हैं। एयरपोर्ट पर धुंध की सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर परवाज़ों का शेड्यूल बहाल हो जाएगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आमद से कबल हेल्पलाइन से परवाज़ों की आमद और रवानगी कंफर्म कर लें। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गुम्बद शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार और सर्दी में शदीद इजाफा हो गया। दफातर जाने वाले अफराद और तुलबा और तालिबात की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत जारी की हैं कि शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें और ड्राइवर्स फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कई दिनों तक धुंध छाए रहने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से एक और विकेट लेने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर अब्दुल गफूर म्याऊ ने पार्टी से 28 साल रफाकत खत्म कर दी है। वज़रा के मुताबिक अब्दुल गफूर रायबट जलसे में पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से एक और विकेट लेने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वजीर अब्दुल गफूर ने पार्टी से 28 साल की रफाकत खत्म कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से एक और विकेट लेने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने 28 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वक्त किए हैं और अब मुस्लिम लीग नून से अपनी राय जुदा कर दी है और साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। जी अब्दुल गफूर बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी की मौजूदगी में वो ये ऐलान करेंगे। और बताया ये जा रहा है मुमकिन तौर पर आज या कल वो बाकायदा अपने एक जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ये ऐलान करेंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी भी मौजूद होंगे। और यहाँ पर वादे रहे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके दरमियान जो टिकटों की तकसीम पर भी काफी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और जराये के मुताबिक जो चौधरी तलाल हैं, रुहेल अख्तर और अयाज सादिक के दरमियान भी अब जो है इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और देखा जाए तो NA 121 में रुहेल ने पार्टी की आदत को इस हल्के में वादे तौर पर इलेक्शन लड़ने का अंदिया भी दिया है, जबकि इस हल्के के 12 यूनियन काउंसिलर्स की हमायत जो है वो अयाज सादिक को भी हासिल है। इसी वजह से काफी जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है वो अपनी पार्टी को खैराबाद करते हुए जा रहे हैं। जी हमारी रिपोर्टर सोनिया मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। बारहवीं बैनुल-अक़वामी मश्क बाराकोडा का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची से आज बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। तकरीब में 13 दोस्त ममालिक के मुबस्सरीन, पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान ने भी खूब शिरकत की। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। 12वीं बैनुल-अक़वामी मश्क बाराकोडा का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची में आज से बाकायदा आगाज हो गया है। तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ, जिसके बाद यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में 13 दोस्त ममालिक के मुबस्सरीन, पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान ने शिरकत की। 12वीं मश्क बाराकोडा 2 ता 4 जनवरी 2024 तक मुनक्कद की जा रही है और ये बारहर और सी फेज पर मुश्तमिल है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गैर मुल्की मंदूबीन और मुतल्लका स्टेक होल्डर्स के वफूद ने भी ब्रीफ में शिरकत की। इस दौरान मश्क के मकासद पर रोशनी डाली गई। मजीद बरां कौमी और बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन ने तेल के अखराज और समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू के रद्द-ए-अमल पर मकाले पेश किए। अपने खिताब के दौरान मेहमान खुसूसी ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम गैर मुल्की मंदूबीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मश्क समंदरी आफात से निमटने के लिए भारी तैयारियों को मुतहरिक करते रहेगी। पाकिस्तान हमेशा से खित्ते और दुनिया की भलाई के लिए महफूज समंदरों का हामी रहा है और रहेगा। कबल अजी अपने इस्तकबालिया खिताब के दौरान डायरेक्टर जनरल PMSA रियर एडमिरल इम्तियाज अली ने हाजरीन की समंदर में आलूदगी की रोकथाम,
के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया और इस सिलसिले में PMSA के अज़म का अदा किया। 12वें मश्क बाराकोडा तेल के मुमकिन इखराज और समंदरी आलूदगी के वाक़ात से निमटने के लिए एक अहम प्लेटफार्म फराहम करती है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चन्योट में 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 15,600 फूड बिजनेस का मुआयना किया गया और 1,794 फूड यूनिट्स और पॉइंट्स की खिलाफ वर्जी करने पर उनको 1,23,00,000 रुपए के जुर्माने भी आए हुए। 9 दुकानदारों पर मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। 47 फूड पॉइंट्स को इंतहाई नाकिस फूड इंतजामात और मिलावट ज़दा खुराक की फरोख्त की वजह से सील कर दिया गया। मिलावटी अशिया की तैयारी पर 9 अफराद पर मुकदमात का इंदराज करवाया गया। नाकिस दूध की फराहमी पर 492 गाड़ियों को 14,75,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए। 11,330 लीटर्स मिलावट शुदा दूध मौके पर तल्फ करके 2 मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। एसटीपीओ सिटी कसूर मोहम्मद सैफुल्ला भट्टी की हिदायत पर मुनशात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खुडिया खास के SHO आबिद महमूद शीना की जेर क़यादत पुलिस ने बदनाम जमाना मुनशात फरोश हनीफ उर्फ हनीफा तोप को 1.5 किलो चर्च समेत रंगी हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरसे दराज से मुनशात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस था। मुलजिम की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया। SHO आबिद महमूद शीना का कहना था कि इलाका मुनशात फरोशों और जराइम पेशा नासिर से पाक करने का मिशन जारी रहेगा। मंग यूनिवर्सिटी हरिपुर में म्यूजिकल नाइट शो के खिलाफ तलबा तंजीमों में बेचैनी पाई जा रही है। इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी के ज़िला अमीर ने म्यूजिकल नाइट शो को ज़िला इंतजामिया से मनसूख करने का मुतालबा किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद इस्लामी जमीयत तलबा के नाजिम अब्दुल रहीम काका खेल के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राशिद, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामी जमीयत तलबा के हरीपुर के नाज़म। हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी कल एक म्यूज़िकल कंसर्ट करवा रही है, एक म्यूज़िकल नाइट करवा रही है उस हवाले से, और हमने उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी की है और ज़िली इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी हमने ये अपील की है कि वो इस कंसर्ट को फ़िलफ़ौर मनसूख करें। लेकिन चूँकि अभी तक उन्होंने इसको मनसूख नहीं किया, तो इसलिए आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान कर दिया है। इंशाल्लाह कल हम अपनी दीगर तलबा तंजीमें MSO और बाकी तलबा तंजीमों के साथ मिलकर इंशाल्लाह कल हम यूनिवर्सिटी के बाहर धरने का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर कुव्वत के साथ वहाँ धरना देंगे और इंतज़ामिया को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो इस म्यूज़िकल नाइट को फ़िलफ़ौर मनसूख करे, और जब तक वो इस म्यूज़िकल नाइट को मनसूख नहीं करेगी इंशाल्लाह तब तक वहाँ पे हमारा धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए कि उसको मनसूख करें। अगर वो मनसूख नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे धरना देंगे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जमात इस्लामी के गज़न इकबाल साहब, MSO के मोहम्मद अनीफ साहब और बाकी लोगों ने भी शिरकत की है। कोट अद्दू में खुश्क सर्दी के बायस बच्चों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा। बच्चों को किस तरह इन बीमारियों से महफूज रखा जाए, हमारे नुमाइंदे मीर हमजा इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफीकुर रहमान शेख के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होते ही जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों में जन्म लेने लगी हैं। इस हवाले से बताता चलूँ, मैं इस वक्त DHQ अस्पताल कोट अद्दू में मौजूद हूँ। मेरे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट शफीकुर रहमान शेख साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानते इस हवाले से। सर बताइएगा कौन कौन सी बीमारियाँ जो सर्दी के बायस जन्म ले रही हैं, एहतियाती तदाबीर क्या है, क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है सर्दियाँ अरूज पे हैं और बच्चों में बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और बच्चे हमारे पास नमूनिया के साथ, सांस की तकलीफ़ के साथ यहाँ पे एडमिट भी हो रहे हैं और कुछ बच्चों में अस्थमा की तकलीफ़ भी हो रही है यहाँ पे स्मोक की वजह से और धुआं की वजह से। और एहतियाती तदाबीर आपने ये करनी है कि जो भी अपना बच्चों को बुखार और खांसी की सूरत में आपने फ़ौरन हॉस्पिटल में तशरीफ़ ले आएँ और बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने हैं, ठंड से बचा कर रखना है, ख़ासकर छोटे जो बच्चे हैं
1 साल से नीचे नीचे। इनमें नमूनिया की शिद्दत जो है ना वो काफ़ी तेज़ होती है और वो जो है ना बच्चों को बाद को हमें दाखिल भी करना पड़ता है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हल्का सा बुखार हो, हल्की सी खांसी हो, फ़ौरन जो है ना अपने मुआलिज से रजू करें ताकि बर वक्त जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहना कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है वो नमूनिया बहुत जल्द होता है, लिहाजा जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि बच्चों को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो ढांप के। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकरूरी कराने का इल्ज़ाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपडेट करते चले आपको, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी ही बेटी को मेरिट से हटकर तकरूरी कराने का इल्ज़ाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकर्रुरी कराने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकर्रुरी करने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकरूरी कराने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकर्रुरी कराने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकर्रुरी कराने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपडेट करते चले आपको, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकरूरी कराने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अपनी बेटी को मेरिट से हटकर तकर्रुरी करवाने का इल्जाम साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने इस हवाले से कहा कि एंटी करप्शन इंक्वायरी में ये बात साबित हुई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तैयारात का नजायज इस्तेमाल करके मेरिट के बरकत अपनी बेटी डॉक्टर आयशा अली को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तानीयात करवाया। इंक्वायरी में ये बात भी साबित हुई कि साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी बेटी की मुलाजमत के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, जिस पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और इनकी बेटी के खिलाफ बाद इंक्वायरी मुकदमा दर्ज किया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि डॉक्टर आयशा अली अपनी तानीयाती के वक्त इस मुलाजमत के मतलूबा मेयाद पर पूरा ना उतरती थी और मुलाजमत के लिए जमा करवाए गए तजुर्बा के सर्टिफिकेट पर इसकी वालदा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद दस्तखत किए। मजीद ये कि मुलाजमत के वक्त डॉक्टर आयशा अली की उम्र 47 साल जबकि मतलूबा उम्र सिर्फ 40 साल थी और डॉक्टर आयशा अली ने कानून के मुताबिक उम्र से रायत के लिए किसी फॉर्म पर कोई दरखास्त जमा नहीं करवाई। मजीद ये बात भी एंटी करप्शन इंक्वायरी में सामने आई है कि डॉक्टर आयशा अली का इंटरव्यू में दीगर उम्मीदवारों पर जानबूझकर फौकियत दी गई और इस मकसद के लिए साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। डॉक्टर आयशा मुलाजमत हासिल करने के फौरन बाद कुआई के बरकत बरूना मुल्क चली गई। तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने कहा कि एंटी करप्शन करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इंतहा कार्रवाई करता रहेगा। जी हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में अरसा 3 साल से अफसरान की तरक्कियां इल्तिवाक का शिकार हैं। आला अफसरान की अदम दिलचस्पी के बाद 16 जनरल मैनेजर्स और 20 चीफ इंजीनियर्स के ओहदों पर जूनियर अफसरान तैनात हैं। दूसरी जानिब महकमा सुई गैस में प्रमोशंस और इंक्रीमेंट भी 3 साल से इल्तिवाक का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 3 साल से मुलाजमीन और अफसरान की तरक्कियां इल्तिवा का शिकार हैं। आला अफसरान की अदम दिलचस्पी 16 GM और 20 चीफ इंजीनियर्स के ओहदों पर जूनियर अफसरान काम कर रहे हैं। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, मर्दान समेत बड़े शहरों में GM के ओहदों पर चीफ तैनात हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 20 चीफ इंजीनियर्स की पोस्टों पर डिप्टी चीफ और सीनियर इंजीनियर्स तैनात हैं। GM लाहौर ईस्ट की बड़ी सीट पर
چیف انجینئر بلال اصغر جبکہ جنرل مینیجر لاہور ویسٹ چیف انجینئر اظہر رشید تعینات ہیں۔ دوسری جانب جنرل مینیجر ملتان راشد اسحاق اور جی ایم پشاور وقاص اللہ خان بھی پروموشن سے محروم رہے۔ جی ایم یو ایف جی شاہد نبیل، جی ایم لینڈ امجد اکرام، جی ایم کوارڈینیشن شفقت ورک ارشد راز سے پروموشن اور انکریمنٹ سے محروم ہیں۔ جی ایم فیصل آباد راشد عنایت، جی ایم مٹیریل کنٹرول عمران صفدر ورک، جی ایم مٹیریل کنٹرول پروجیکٹ عمران احمد خان بھی 3 سال سے ترقی سے محروم۔ جی ایم پروکیورمنٹ اور جی ایم ایڈمن بھی قائم مقام عہدے پر تعینات ہیں، جبکہ جنرل مینیجر لا اور جی ایم ٹیلی کام سمیت دیگر افسران بھی پروموشن کے انتظار میں ہیں۔ محکمہ سوئی گیس کے قانون کے مطابق ہر سال افسران اور ملازمین کی ترقی ہوتی ہے، جو 3 سال سے نہ ہو سکی، جبکہ سالانہ انکریمنٹ 2023 بھی تاخیر کا شکار۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما امیدوار N119 حافظ عبدالرؤف نے کہا کہ حلقہ کا بنیادی مسئلہ پانی ہے۔ جہاں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی میسر نہیں، وہاں باقی سہولیات کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ N119 میں سینکڑوں آبادیاں مگر لوگ دیہاتوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ سابقہ حکمران ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے N119 میں فلٹریشن پلانٹ، سستی روٹی تنور اور فری دسترخوان کے افتتاح پر کیا۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کے صوبائی امیدوار حافظ عبید اللہ بھی موجود تھے۔ عبدالعلیم خان نے پی پی 149 لاہور میں شہروں سے ملاقات کی ہے۔ شہریوں، سیاسی سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے والہانہ استقبال بھی کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عبدالعلیم خان نے پی پی 149 لاہور میں شہریوں سے ملاقات کی ہے۔ سیاسی سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا۔ جمیل آباد میں فری ڈسپنسری کے دورے میں درپیش مسائل کے حوالے سے عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اہل علاقہ میرے ساتھی ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، مزید مضبوط ہوگا۔ پی پی 149 کے تمام تر سرکاری اسکولوں میں عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کی جانب سے تعمیر کردہ واش رومز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اجمل جٹ کی اس رپورٹ میں۔ آئی پی پی کے سینئر رہنما عبدالعلیم خان کا پی پی 149 لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، اپنے حلقوں میں تمام تر شہریوں سے ملاقات کی، جبکہ سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ کی جانب سے والہانہ استقبال بھی کیا گیا۔ آئی پی پی کے سینئر رہنما نے جمیل آباد میں فری ڈسپنسری کا دورہ کیا اور درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اہل علاقہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ آئی پی پی کے سینئر رہنما نے پی پی 149 کے تمام تر سرکاری اسکولوں میں عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کی جانب سے بنائے جانے والے واش روم کا بھی جائزہ لیا۔ 15 سرکاری اسکولوں میں باتھ روم کی تعمیر جاری ہے، 14 ڈسپنسریاں کام کر رہی ہیں۔ اگر اللہ نے عوامی خدمت کا موقع دیا تو عوامی خدمت اولین ترجیحات میں سے ایک ہوگی۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان کی جانب سے باجا لائن گرلز اسکول میں 6 مزید واش روم بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی، جبکہ بزرگ خواتین کی جانب سے ہر جگہ عبدالعلیم خان سے اظہار شفقت، کامیابی کی دعائیں، جبکہ ننھے بچوں کی جانب سے منفرد انداز میں استقبال بھی کیا گیا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا عبدالعلیم خان لاکھوں میں ایک، قدم بڑھاؤ علیم خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آئی پی پی کے سینئر رہنما عبدالعلیم خان کی ریلوے اسکول ہوپ روڈ میں مسجد اور وضو گاہ کی تعمیر، باتھ روم بنانے کی فی الفور ہدایت جاری بھی کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اجمل جٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ قومی امن کمیٹی سپریم کونسل پاکستان کے زیر اہتمام بین المذاہب دعائیہ تقریب کا اہتمام الرحمان منزل شاہدرہ میں کیا گیا۔ تقریب کی صدارت الحاج عامر رشید خان اور علامہ اصغر عارف چشتی نے کی۔ رپورٹ کریں گے آسم بدر۔ قومی عمل کمیٹی سپریم کونسل پاکستان کے زیر اہتمام بین المذاہب دعائیہ تقریب کا اہتمام الرحمان منزل شاہدرہ میں کیا گیا۔ تقریب کی صدارت الحاج عامر رشید خان، چیئرمین پاکستان سنی علماء فورم علامہ اصغر عارف چشتی نے کی۔ علامہ ڈاکٹر زاہد الراشدی، بشپ شہزاد راکی، علامہ نصیر الدین نوری، چودھری اشرف، حکیم محمد آصف، بشارت علی شیرازی، اسامہ عامر رشید، امیر حمزہ، میڈم تبسم ناز، مسز شہزاد راکی کی شرکت۔ ملکی سلامتی اور بقا کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ حکمران تمام رنجش بلا کر ایک قوم بن کر ملک کی خدمت کریں۔ ملکی خوشحالی کے لیے نئے سال کے آغاز میں الیکشن کا انعقاد خوش آئند ہے۔ موجودہ مسائل سے نجات کے لیے الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن ہی ملک و قوم کی ترقی کا ضامن ہے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لاہور کے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ لاہور کے مختلف حلقوں کے انتخابی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو کا جنوری کے تیسرے ہفتے میں لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ این 127 میں جلد الیکشن آفس کا افتتاح بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو نے این 127 میں آنے والے صوبائی حلقوں کے امیدواروں کے ناموں پر بھی غور کیا۔ ذوالفقار بدر، حسن مرتضی، سمینہ گھرکی، اسلم گل، جمیل منج، میاں مصباح، حافظ غلام محی الدین، عزیز الرحمان چند، فیصل میر، خالد جاوید خان، قاسم گیلانی، نایاب خالد جان، عائشہ چودھری اور میاں خالد بھی موجود تھے۔ ایف پی سی سی آئی کے نو منتخب ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز قریشی اور نائب صدر زین افتخار نے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر، سابق صدر زبیر طفیل، سابق سینئر نائب صدر عامر عطا باجوہ، الماس حیدر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ مومن علی ملک، علی حسام اصغر، احمد چنائی، میارہ زاہد حسین نے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ ایس ایم تنویر نے کہا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے۔ ہم نے ایف پی سی سی آئی کے ذریعے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ملک کی صنعتیں فروغ پائیں۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات اپنے جانی سی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔